Hi Tikam, welcome to this feedback section. How are you doing today? Hi, sir. Very good evening, sir. I'm just good and I'm be happy because of the placement. Okay, great. Yeah. So for the viewers who are watching this video, we have Mr. Tikam Chand today with us. We have a good news for him as well as for other viewers. He got placed with AT&T recently at a very amazing package. Earlier in 2021, 22, he enrolled here with iMedita for multi-track program. In the multi-track, we cover CCNA, CCNP, network security, and other areas of the network domain. Uh, if I'm not wrong, Tikam, after that multi-track program, you got placed with CompuCom. You worked there for 1.8 months. Now you came back Yes, sir. again here to iMedita, Right, did sir. all your revision, took intensive revision classes, did all the labs and revision and all those things, and now you got another opportunity with AT&T as a design specialist, design senior engineer, right? Yes, sir. Right, sir. So don't share your salary, don't share a package because that is confidential. But I would like to know how much percentage of hike you have got as compared to Compicom with AT&T. Actually, it is unbelievable, sir. It is 300 plus Okay, hike on my current package. okay. So how it feels like? I'm just unbelievable thing, sir. Okay. It is because of the IME data only. So from last couple of months, what kind of approach you were taking for your interview preparations and how you did revision? Can you tell us a little bit about those things? Yes, sir. Sure, sir. Actually, after the Compicom, I resigned the Compicom. After that, I uh, just get off my knowledge, and after that, I just starting the new things with the IME data, the revision batches and all. In the revision batches, the Baldev sir will be take out that batches, and in that we are just line to line description and all. All the things are just prepared in that batches. After that, we are revising the video sessions of the Vikas sir. Uh, because of that, we are just getting more knowledge as per before, and because of that videos, we are just make the confident on the concept of the OSPF, BGP, and all. So Okay. it helps us to crack the interview. Okay. And I think one advantage which you got with this particular interview was because in Compicom you were working over the AT&T products and for AT&T customer, if I'm not wrong, right? Right, sir. Right, That was sir. a big advantage for this interview, right? Yes, sir. Okay. Because of that, I'm just able to say that on which devices I work actually with Right. the AT&T. Actually, we are getting the calls from AT&T, and it is another vendor, 7-Eleven, AT&T, and Compicom. And just we are getting the bridge call and all the things with them. Okay. So they are express with them. ओके और आपने कॉम्पीकॉम से पेपर कब डाले कब नोटिस पीरियड आपने कंप्लीट किया अपना एक्चुअली मैंने कॉम्पिकॉम में डाला था 21 जून को। ट्वेंटी ओके फर्स्ट जून को मेरा एक्चुअली लास्ट डेट था। तो ओके उसके बाद मैंने यहाँ पे आईएमए डेटा में ज्वाइन किया। तो मैंने फिर से मेरा प्रिपरेशन जो है वो फिर से स्टार्ट किया पहले से। जस्ट तो कुछ इंटरप्टिंग यू हियर आपने किसी नए कोर्स में एडमिशन नहीं लिया आपने पूरा जो नहीं। पहले पढ़ी हुई थी चीजें जो आपने मिस की थी पहले चीजें वो आपने दोबारा हम्म। से इंटेंसिवली रिवाइज की आपको आपने लैब्स की इफ आई एम नॉट रॉन्ग राइट ये सर, राइट सर। ओके ओके तो अब फिर आपने 3-4 मंथ्स और क्या अप्रोच फॉलो किया आपने कितने इंटरव्यूज दिए पिछले लगभग 15-20-30 डेज में पिछले 20-30 में मैंने लगभग, आपने जब से कॉल्स इनेबल किए थे, मैंने तब से 25 कॉल्स, एचआर कॉल्स हैंडल किए। उसके बाद मेरे 5 से 10 इंटरव्यू शेड्यूल हुए। ओके तो 10 में से एक्चुअली मुझे 3 का ऑफर आया था, लेकिन एटीएनटी के साथ मैंने जाने के लिए सोचा फिर। ओके ओके तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा बिफोर ज्वाइनिंग मल्टी ट्रैक आप स्टूडेंट थे आपने फिर 1.5 1.8 इयर्स जॉब की कॉम्पीकॉम के साथ देन यू केम बैक हियर डिड योर रिवीजन नाउ यू गॉट अपॉर्चुनिटी अगेन तो ओवरऑल पिछले 2-3 साल का आपका एक्सपीरियंस आई मेडिटा के साथ कैसा रहा एक्चुअली आईमेटा ये एक कंपनी नहीं है, एज अ ट्रेनिंग सेशन नहीं है ये। स्टूडेंट को अपना फैमिली की जैसा ट्रीट करती है। Just once enrolled in the IME data student, that everyone will be treated as a family member.
सो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब से यहाँ पे आया हूँ तो मुझे ऐसा मतलब किसी चीज की दिक्कत नहीं हुई पढ़ाई के बारे में कि मुझे ये नहीं मिला वो नहीं मिला। मुझे यहाँ से पूरा सपोर्ट मिला है, वीडियो एक्सेस मिला है। उसके बाद अगर टाइम टू टाइम डिसीजन मेकिंग जो रहता है, हम डिसीजन नहीं ले सकते, तो यहाँ से वो मिला है मुझे। मतलब दिमाग में जो कॉन्सेप्चुअल रहता है कि ये क्या ये करूँ या वो करूँ, तो यहाँ पे आके वो क्लियर हुआ है मुझे। और Okay. उसके बाद अगर कॉन्सेप्चुअल मतलब ट्रेनिंग सेशन में जो डाउट्स रहते हैं, तो वो आफ्टर द बैच, मतलब मैंने तो छोड़ दिया था, मतलब मल्टी ट्रैक मेरा हो चुका था। तो उसके बाद में मैं अगर सर के पास, विकास सर के पास या किसी सर के पास अप्रोच करता हूँ, तो वो मना नहीं करेंगे आपको। वो पूरा उसी मतलब इंथुजियास्ट, मतलब वही टाइप से आपको फिर से बताएंगे कि भाई ये ऐसा है वैसा है ये सब। तो ऐसा कुछ दिक्कत यहाँ पे नहीं गई। कि पिछले 3-4 मंथ्स में आपने किस लेवल की प्रिपरेशन की, कितने घंटे आपने अपनी रिवीजन में लगाए, कितने घंटे आपने अपनी सेल्फ स्टडी में लगाए, क्या अप्रोच फॉलो किया आपने? एक्चुअली मैं सुबह से आता था यहाँ पे। पहले सुबह आता था तो फिर थोड़ी भीड़ रहती थी, नए नए स्टूडेंट रहते थे। तो फिर मैंने नाइट में आना चालू कर दिया। नाइट में मैं मतलब 9 बजे से लेकर 3 बजे तक मैं रुकता था यहाँ पे, 3 से 4 बजे तक। लगभग 7-8 घंटा रुकता था। उसमें उसमें से मैक्स मेरी 6 घंटा तो पढ़ाई होती थी। 6 घंटा मैक्स पढ़ाई होती थी मेरी। तो 6 घंटा मैंने रोज का दिया है यहाँ पे पढ़ाई के लिए। उसके बाद वीडियो एक्सेस लिया था। तो वीडियो एक्सेस में मेरे बहुत से कॉन्सेप्ट पहले जो क्लियर नहीं थे वो क्लियर हो गए यहाँ पे। तो ऐसा मुझे यहाँ से बहुत वीडियो ज्यादा बेनिफिट में मिला। आप ऑलरेडी क्योंकि लाइव क्लासेस पहले कर चुके थे, तो यू थॉट कि लाइव क्लास में टाइम ज्यादा लगेगा, सो यू टुक द सेम वीडियो रिकॉर्डिंग एक्सेस फॉर रिवीजन पर्पस, राइट और सर। वो फॉलो करके आपने पूरा यहाँ पे आके बैठ के अपने स्टडी की लैब्स में और अपना राइट सर। रिवीजन किया। तो यस। व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू के स्टूडेंट को यहाँ पे फिजिकली क्यों आना चाहिए? क्या उससे बेनिफिट मिलता है? आपको क्या डिफरेंसेस फील हुए कि आने में, नहीं आने में? बिकॉज यू आर स्टेइंग हियर नियर बाय, आपने कहा यू आर कमिंग इन द नाइट, यू आर कमिंग इन द डे टाइम एज वेल। सो अकॉर्डिंग राइट टू सर। क्या बेनिफिट मिला आपको यहाँ आने से? मतलब ये चीजें तो घर से भी आप कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं रिवीजन, बट व्हाट डिफरेंसेस यू फेल्ट के क्लासरूम में आने से ये डिफरेंट, या लैब्स में फिजिकली आने से ये मेरे को ओवरऑल एक डिफरेंस मिला? एक्चुअली सर घर से तो जितना हम डेडिकेशन देना चाहते हैं उतना होता नहीं है। घर के काम ये सब करके हमको ये सब मेंटेन करना होता है, तो वो होता नहीं, एक्चुअली नहीं होता है वो। तो यहाँ पे आने के बाद हमको एक एनवायरनमेंट मिलता है। एनवायरनमेंट एक्चुअली IMA डेटा ने क्रिएट किए वाला एनवायरनमेंट है। तो वो एनवायरनमेंट में अपने को पढ़ने का मतलब एक नजरिया मिलता है, एक वे मिलता है, एक विजन मिलता है। तो यहाँ पे आकर अपने को बहुत सी चीजें नई नई सीखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे हुआ, नई नई टेक्नोलॉजीज के बारे में अपने को पढ़ने को मिलता है, सोचने को मिलता है, देखने को मिलता है, डिस्कशन चलता है। तो उसके बाद और बहुत से लोगों का प्लेसमेंट चलता है, उसकी वजह से भी हमारा थोड़ा सा ये कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और तो फिर यहाँ पे आके और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि लैब फैसिलिटी, इट इज 24/7 लैब फैसिलिटी। अब बिकॉज ऑफ दैट मतलब हमको ऐसा घूमना नहीं पड़ता कि भाई अभी रात हो गई हम पढ़ेंगे कैसे। दिन भर तो सो लिया, बाद में कभी कभी ऐसा होता है कि टाइम पास हो जाता है दिन में, रात में पढ़ने की इच्छा रहती है। तो उस टाइम पे हम यहाँ पे कभी भी आके कभी भी पढ़ सकते हैं। ये एक पूरा बेनिफिट है लैब का, लैब एक्सेस का। तो ऐसा कुछ रहा है मेरा एक्सपीरियंस। और रियल टाइम में हम डिवाइसेस के साथ लैब टोपोलॉजीज वगैरह वो सब क्रिएट कर सकते हैं। अगर कुछ दिक्कतें आती हैं तो यहाँ पे लैब असिस्टेंट है, उससे हम डायरेक्टली कनेक्ट होके वो सब सुलझा सकते हैं अपनी दिक्कतें। ओके। और क्या आपने ऐसे भी कुछ पार्टिसिपेंट देखे जो आपसे भी ज्यादा मेहनत कर रहे थे लैब में, आपसे भी ज्यादा? यस सर, राइट सर। राइट सर, एक्चुअली सर। सो आई थिंक उनको एक्चुअली आई सी दैट मोटिवेशन आता है। बहुत से लोगों को मतलब लेक्चर टू लेक्चर याद हो गया था, ये लेक्चर में ये है, ये लेक्चर में वो है, वो लेक्चर में वो है। एक्चुअली मैं नाम भी लेना चाहूंगा, सचिन करके नाम है, उसको लेक्चर टू लेक्चर सब कुछ पता है सर। कि उसका पूरा याद हो चुका है कि ये लेक्चर में ऐसा पढ़ा है, वो लेक्चर में वैसा पढ़ा है सर ने। ओके। तो ऐसे भी स्टूडेंट मैंने देखे हैं। थैंक यू Tikam, thank you for giving us your valuable time. We wish you all the very best for your career endeavors. Keep learning, keep in touch, and all the best again. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।